Okay, so I want to introduce to you today properly what is the idea of four vectors, how can you write the scalar product of two four vectors, and at least I'll discuss one four vector which is the displacement four vector, and then I'll correlate it with the space-time interval. शुरू करें फिर? Yes, sir. All right. थोड़ा सा एक दो चीज़ें मैं रिवाइज कर देता हूँ. सबसे पहली बात तो I said that three vectors, जो हम normal vectors को define करते हैं, those are those kinds of quantities or three numbers or three components which under rotation of the coordinate frame of reference remain invariant, and their scalar products remain invariant or dot products remain invariant. And then four vectors, I said it follows a certain kind of transformation which is related to various quantities by the Lorentz transformation matrix. So दो चीज़ें मैं previous lecture से borrow करके आपको देता हूँ. सबसे पहली बात तो ये है कि थ्री वेक्टर्स जो है, बाई थ्री वेक्टर आई मीन जस्ट जो नॉर्मल वेक्टर है आप लोग जैसे डिफाइन करते हैं इन डे टू डे लाइफ, दैट हैज़ थ्री कंपोनेंट्स, has three components. So if you have a vector A, it will have components ax, let's suppose ay, az. All right, so it's a three vector. I want to distinguish the three vector from the four vector. So the three vector is the normal vectors that you define. Any physical quantity that has three components associated with each other are a set of three numbers, are a set of three numbers or three quantities or three variables, are a set of three numbers that transform under rotation of coordinate axis, rotation of coordinate axis or coordinate axis. If the coordinate axis undergoes rotation according to following, and we obtained the set of transformation equations in one of our previous lectures. Which was the lecture? Let me take a look at it. Did we obtain it here? Yes, we obtained it here. You remember? ये याद है आपको? Do you remember this? Yes, sir. Okay. So let me borrow this expression. So let's suppose that you have a vector capital A. Under rotation of the transformation axis, this vector capital A will undergo the components will undergo a transformation according to this kind of a set of equations. Let me borrow it. Paste it here. All right, so let's suppose you have a vector A, you have having components capital just a moment, hang हो गया, just 1 sec. Okay, so under rotation of coordinate axis, so if you have some kind of a coordinate axis x, y, z, x, y, z, and it undergoes some kind of a rotation into x dash, y dash, z dash, then any vector A
vector is defined in this kind of a coordinate with respect to this kind of a coordinate reference frame having components ax, ay and az, will remain invariant, but the components will undergo transformation according to this equation, right? Quite simple as that. And I'm defining a vector to be that set of three quantities which undergoes transformation according to this expression under the rotation of a coordinate frame of reference. Now, in this sense, I'm coming to the definition of what is known as the four vectors. So four vectors are also a component of four vectors. I'll define that has four components. Four components as in you have a vector, let's suppose A, it has a component A0. Usually यहाँ पे हम फोर वेक्टर्स में हम सुपरस्क्रिप्ट में लिखते हैं, सुपरस्क्रिप्ट कभी कभी सबस्क्रिप्ट पे भी लिख सकते हैं. इट्स नॉट अ हार्ड एंड फास्ट रूल, डिपेंड्स अपॉन व्हाट इज कॉन्ट्रावेरिएंट और कोवेरिएंट. A0, A1, A2 and A3. So you have four components. So let's suppose a four vector A has four components, A0, A1, A2, A3 are a set of four quantities that under a Lorentz transformation, यहाँ पे क्या था, अंडर रोटेशन, अंडर अ लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन. और मैंने आपको बताया कि लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन रेप्लिकेट्स द रोटेशन ऑफ फोर डायमेंशनल स्पेस टाइम. सो अंडर अ रोटेशन लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्म्स according to a similar equations as expression जो हमने obtain किया था from Lorentz transformation, which is nothing but, let's suppose you have a vector A mu in the S bar frame of reference is simply equal to the Lorentz transformation matrix nu mu A nu. Do you remember this? This is a set of transformation equations for three vectors and this is a set of transformation equations for four vectors. मैंने इसको obtain किया था in one of my previous lectures. Do you remember? Yes, sir. I obtained this in one of my previous lectures. I think yeah, I obtained it here. No, maybe here. No, here I obtained the space-time interval. Sorry, probably I obtained it here. This is the one that I obtained. Okay, I hope you remember this. So based on the already known Lorentz transformations, you can obtain this sort of a transformation. You can rewrite the four set of transformation equations in this very compact form. ठीक है, तो आपके पास ऑलरेडी क्या है, आपके पास ऑलरेडी ये है that let me rewrite the Lorentz transformation equations once again if you are comfortable. So in terms of x, y and z, we know that Lorentz transformations क्या कहती है, ये कहती है कि t bar is equal to gamma t minus vx upon c square, right? And x bar is equal to gamma x minus vt, y bar is equal to y and z bar is equal to z. What I do is I multiply with a c here. So if I multiply with a c, this becomes ct and this becomes v upon c. ठीक है, and then I say कि जो ct है आपका, ct is what? x naught, x is what? x1, y is what? x2 and z is what? x3. Okay, if I say this, then what do you end up getting? You end up getting x naught bar is equal to gamma x naught minus beta, where beta is equal to
V upon C x1, yes, and x bar 1 is equal to gamma x1 minus ये सी टी के जगह पे यहाँ पे सी टी और वी अपॉन सी इंटू सी टी हो जाएगा. सो ये हो गया बीटा एक्स नॉट, यस, एंड एक्स बार 2 इज इक्वल टू x2 एंड एक्स बार 3 इज इक्वल टू x3. सो इसको हम कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ एक्स बार म्यू इज इक्वल टू सम ओवर ऑफ lambda nu mu in terms of nu is equal to 0 to 3 x to the power nu. Alright, तो basically यहाँ पे where this lambda is nothing but nu mu, nu going from 0 to 3 and mu also going from 0 to 3 is this matrix gamma minus gamma beta and minus gamma beta gamma 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1. Are you following what I am saying? ये सब मैंने पहले भी डिस्कस किया हुआ है. Are you following? Yes, sir. तो what I am saying is that this transformation that exists between x0, x1, x2 and x3 and x0 bar, x1 bar, x2 bar and x3 bar, this transformation exists between them. I am saying that 4 vectors are those vectors such that for any general vector a0, a1, a2, a3, their transformations are also related by the same expression. Their transformations are also related by a similar expression. जैसा ये एक्सप्रेशन है आपका, ये एक्सप्रेशन भी, यहाँ पे भी समेशन हम लगा सकते हैं. समेशन इज इम्प्लिसिट हियर, mu is equal to 0 to 3. Are you understanding? In general, a 4 vector is a set of 4 numbers that undergo transformation when subjected to Lorentz transformation according to this particular expression. जो हमने प्रूव किया है for x, y, z, it is also true for any other physical quantity a, b, c, whatever. चाहे वो वेलोसिटी हो, चाहे वो एक्सीलरेशन, चाहे वो मोमेंटम हो, चाहे वो कुछ भी हो, कोई भी 4 वेक्टर हम डिफाइन करेंगे इन मिनकॉस स्पेस टाइम, एनी फिजिकल क्वांटिटी must undergo transformation, must undergo Lorentz transformation according to this set of equations. Is this clear or not? ये समझने वाली बात है और कुछ नहीं है, इसमें ज़्यादा डिटेल नहीं है. दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग, आपको ये समझ में आया कि नहीं है? इसमें कोई डाउट है बेटा, या समझ में आ गया? यू आर फॉलोइंग? ओके. So this has got to do with the definition of what 4 vectors are. So the definition of what 3 vectors are is that these are a set of 3 numbers which undergo transformation according to this equation whenever the coordinate axis experience rotation. उसी तरह से the definition of what 4 vectors are is that is a set of 4 numbers, quantities, which under Lorentz transformation transform according to this expression. जो एक्सप्रेशन हमने यहाँ पे लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए एक्स वाई जेड के लिए प्रूव किया है, वही सेम एक्सप्रेशन नॉर्मल किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के लिए ट्रू है. ठीक है. नाउ एक्स वाई जेड के लिए तो इट्स वेरी मच ऑब्वियस, इट इज़ रिटन इन दिस पर्टिकुलर कॉम्पैक्ट फॉर्म, बट अदर फिजिकल क्वांटिटीज़ के लिए भी मैं इसको प्रूव करूँगा. व्हेन आई डिफाइन वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मैं इसको प्रूव करूँगा. ठीक है, व्हेन एवर इट इज़ नीडेड. देयर इज़ अनदर इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी related to this. One property is under rotation of the coordinate axis, the vector itself is invariant, but the scalar product of the vector with another vector is also invariant. For example, if I define a vector quantity A, and I define another vector quantity B, then the scalar product of A and B is some scalar number. It is also invariant under the rotation of coordinate axis. Similarly, I can also define an inner product or a scalar product of 4 vectors which are also going to be invariant under Lorentz transformations. Understood? So let's come to that.
scalar product, also known as inner product. Okay, so in three vectors, we can define in terms of three vectors. We can define a scalar product or a dot product or an inner product, you know, as let's suppose you have some quantity A, okay, and you have another quantity B. इसको आप ऐसे लिख सकते हो या फिर समटाइम्स इसको ऐसे भी लिखते हैं ना क्वांटम मैकेनिक्स में, in terms of cat and bra, but in general हम लिख देते हैं इसको in terms of dot product. Let's suppose A dot B. What is A dot B? It is just the product of the components, respective components. Let's suppose A का component है AX, तो B का component है BX, plus A का component है AY and B का component है BY, plus A का component है AZ and B का component है BZ. So this is how the scalar product is defined in terms of three vectors, and we know that above is invariant under rotation of coordinate axis. Similarly, I can also define a scalar product for four vectors. Similarly, we can define inner product or scalar product with respect to four vectors. Okay, with respect to four vectors we can define, which is, let's suppose आपके पास एक वेक्टर है A, ठीक है, all right, A mu, and दूसरा वेक्टर है B, P mu, okay, this is how you write it. So इनके बीच का जो स्केलर प्रोडक्ट होगा, it is nothing but A naught B naught plus A1 B1 plus A2 B2 plus A3 B3. जिस तरह से आपका थ्री वेक्टर्स में you have the components AX, AY and AZ which are multiplied to the components of B, which is BX, BY, BZ respectively, and then added together, sum over होता है. उसी तरह से यहाँ पे भी जो आपके पास एक A4 वेक्टर है और B4 वेक्टर है, तो A के जो कंपोनेंट्स है A0, A1, A2 एंड A3, और B के जो कंपोनेंट्स है विच आर B0, B1, B2 एंड B3, उनको ऐड किया जाता है with the exception that there is a minus sign in front of the temporal component. That's it. मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि you just add a minus sign in front of the temporal component, and if you do that, this is how you define a scalar product. In front of the product of temporal components, time components. समझ में आ रहा है? A नॉट क्या है? टाइम कंपोनेंट ऑफ A. of A. उसी तरह से A1 is the X component. उसी तरह से A2 is the Y component. उसी से A3 is the Z component. And just like the scalar product of three vectors is invariant under rotation, the scalar product of four vectors is invariant under Lorentz transformation. And scalar product of four vectors is invariant, and therefore it's a very important quantity, invariant under Lorentz transformation. Just like a dot product of three vectors is invariant under rotation of coordinate axis, the four-dimensional product of four vectors is invariant under Lorentz transformations.
also known as 4-dimensional scalar product, 4D scalar product. Are you following? कोई डाउट है यहाँ पे? No, sir. इस चीज को रिप्रेजेंट करने का एक और तरीका है, एंड दैट इज बाय लुकिंग एट द कॉन्ट्रावेरिएंट एंड द कोवेरिएंट फॉर्म. वी रिप्रेजेंट 4 वेक्टर्स बाय, लेट्स सपोज कोई वेक्टर है a, वी रिप्रेजेंटेड बाय a mu या a mu in the subscript or in the superscript. So which brings us to we can represent the above concepts using the idea of covariant and contravariant forms. तो what is covariant and contravariant? So basically जो भी आपका एक 4 वेक्टर होता है that can be represented, let's suppose a 4 vector is A, हम इसको बोलते हैं it's a 4 vector by saying that I represent mu और nu और eta, अलग अलग किताबों में अलग अलग होता है, कुछ में eta होगा, कुछ में nu होगा, कुछ में nu होगा, in the superscript or in the subscript. So when I represent this in the superscript, this is basically what is known as a contravariant form, and when I write it in the subscript, this is known as a covariant form. जो इनके components है, they are written as A0, A1, A2, A3, और यहाँ पे जो components है A0 all written in subscript A1, A2 and A3, and these components are equal to each other such that A0 is equal to A0, उधर चाहे वो superscript, sorry, A1 is equal to A1, A2 is equal to A2. It's just a way of writing. A3 is equal to A3. The only difference is related to these. The moment you go from the covariant to a contravariant form, A0 is simply equal to minus A0. When you go from covariant to contravariant form, in that kind of a situation, you'll have to switch the signs. Otherwise everything else is the same. जब आप 4 vectors को define करते हैं, whether you define it in terms of covariant or contravariant form, that the components have the same value, with the only exception that जब आप covariant से contravariant में जाते हैं, then you must switch the signs. Are you following? Excuse me, sir. Yeah. सर फिर ये आयोटा कंसीडर नहीं किया जाता होगा इसमें, मतलब या कोवेरिएंट में या कंट्रावेरिएंट में, किसी एक में तो आयोटा कंसीडर नहीं किया जाएगा, तो माइनस साइन चेंज होगा. आयोटा कहाँ से आ गया यहाँ पे? सर ये माइन तो आयोटा, मतलब जब आयोटा ले लेते हैं तब. बट यहाँ पे आयोटा कहाँ से आया? मैं तो सिर्फ एक कन्वेंशन की बात कर रहा हूँ. आयोटा कैसे आया? तो सर फिर सर साइन क्यों चेंज हो रहा है? साइन इसलिए चेंज होता है बिकॉज इट हैज़ समथिंग टू डू विथ हाउ द टाइम कंपोनेंट्स एंड द स्पेस कंपोनेंट्स रिलेट टू वन अनदर. बट मैं यहाँ पे जो आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे ये माइनस साइन क्यों आ रहा है, ये आपको समझ में आ जाएगा व्हेन आई कम अप विथ. वैसे मैंने बताया भी था लास्ट टाइम, स्पेस टाइम इंटरवल मैंने डिफाइन किया था, आपको याद है? Yes. जब मैंने दिखाया था कि एक मैग्नीट्यूड ऑफ अ 4 वेक्टर when it undergoes transformation from one space to another, तो जो मैग्नीट्यूड आपका अनचेंज्ड रहता है, वो मैग्नीट्यूड में टाइम कंपोनेंट के प्रोडक्ट के सामने माइनस साइन आता है. लास्ट टाइम क्लास में हमने प्रूफ किया था ना? Yes, sir. प्रूफ किया था. तो अब मैं सिर्फ वो एक डिस्टेंस मैग्नीट्यूड या टाइम मैग्नीट्यूड की बात कर रहा था. यहाँ पे मैं कोई भी फिजिकल, इन जनरल फिजिकल क्वांटिटी का स्केलर प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ. ये फिजिकल क्वांटिटी वेलोसिटी भी हो सकता है, एक्सेलरेशन भी हो सकता है. मैं आऊँगा, जब मैं वेलोसिटी डिफाइन करूँगा तब मैं उसका स्केलर प्रोडक्ट निकालूंगा, और उसमें आपका
मोमेंटम भी हो सकता है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो सकती है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी भी हो सकता है। तो मैंने यहाँ पे आपको थोड़ी देर पहले बताया कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, ये ट्रांसफॉर्मेशन सारे फॉलो करते हैं, लेकिन जब कोई भी फिजिकल क्वांटिटी ये पर्टिकुलर ट्रांसफॉर्मेशन फॉलो करता है तो उस फिजिकल क्वांटिटी का जब मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करते हैं, जब भी मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करते हैं तो टाइम कंपोनेंट के सामने माइनस साइन आता है, और इस चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए हम कोवेरिएंट या कॉन्ट्रावेरिएंट फॉर्म में डिनोट कर सकते हैं, जहाँ पे द रूल इज दैट द मोमेंट यू गो फ्रॉम द कोवेरिएंट टू कॉन्ट्रावेरिएंट फॉर्म, तो टाइम कंपोनेंट के सामने माइनस साइन आ जाता है। Now if you want to find out the logic of it, then you have to understand the nature of the metric tensor, जो मैं डिस्कस नहीं किया है। तो you have to look at what is the nature of the metric tensor, but the nature of the metric tensor is what decides why it is happening. But the important point is that this is how you represent the magnitude, the minus sign in front of the product of the time components। but इस चीज़ को हम लिखने के लिए, उसको हम लिखेंगे कैसे, बिकॉज आई नीड टू कम अप विथ सम आइडिया ऑफ हाउ टू राइट दिस, ये आप लोग के लिए कम्प्लीटली नया है। तो इसको लिखेंगे कैसे, जैसे मैंने अगर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट डिफाइन कर देता तो वो तो ऑब्वियस हो जाता है आपका, लेकिन मैं 4 वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट डिफाइन करूँगा तो वो कैसे लिखूँगा, उस चीज़ को समझाने के लिए आई एम राइटिंग इट इन टर्म्स ऑफ द कोवेरिएंट एंड कॉन्ट्रावेरिएंट फॉर्म। द ओनली रूल इज दैट द व्हेन यू गो फ्रॉम कोवेरिएंट टू कॉन्ट्रावेरिएंट, इन दैट केस you add a minus sign in front of the temporal component only. Sir, when you are from covariant to contravariant, then put up a sign minus n. मतलब अगर आपका कोई कोवेरिएंट है क्वांटिटी, उसका कोई मैग्नीट्यूड होगा ना, द मोमेंट यू गो फ्रॉम कोवेरिएंट टू कॉन्ट्रावेरिएंट एक माइनस साइन ऐड कर दो, एंड व्हेन यू गो फ्रॉम कॉन्ट्रावेरिएंट टू कोवेरिएंट यू ऐड अ माइनस साइन, इट्स द सेम थिंग ना। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, आप माइनस साइन यहाँ पे ऐड करो या यहाँ पे ऐड करो, इट डजेंट मैटर। द ओनली पॉइंट इज दैट व्हेन यू आर गोइंग फ्रॉम let's suppose covariant to contravariant, you add a minus sign in front of the temporal component, and when you do that, then you can represent this particular expression in a very compact form in terms of the Einstein summation convention, which is you can represent, then we can represent the scalar product. Hello sir. Yes. Sir, we are dealing with the contravariant form so far. So why we need covariant form? It is to represent the inner product. So for example, जो स्केलर प्रोडक्ट हम लिखेंगे, कोई लेट्स सपोज आई हैव अ प्रोडक्ट ए, तो द यू रिप्रेजेंट इनर प्रोडक्ट इन दिस पर्टिकुलर मैनर, ए mu b in this manner. This is the way to represent an inner product actually. तो if you represent an inner product in this manner, तो इसमें हम कॉन्ट्रावेरिएंट फॉर्म में जब जाएंगे तो माइनस ए नॉट बी नॉट हो जाएगा ना। Yes sir. ए तो पहले कोवेरिएंट में था, लेकिन ए को मैं कॉन्ट्रावेरिएंट में ले जाऊंगा तो माइनस साइन आ जाएगा ना यहाँ पे। Yes sir. Yes. लेकिन बाकियों में नहीं आएगा, a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3। Yes sir. Okay sir. Got it. मैं पूरा सम जो है इन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रावेरिएंट कंपोनेंट्स को ही लेकर के करूँगा, बट व्हेन आई रिप्रेजेंट द इनर प्रोडक्ट आई नीड टू मेक सेंस ऑफ दिस सिंपल नेगेटिव साइन विच आई विल रिप्रेजेंट बाय यूजिंग अ कोवेरिएंट एंड अ कॉन्ट्रावेरिएंट। तो आप जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसको कैसे समझाऊँ, आप जब क्वांटम मैकेनिक्स में इनर प्रोडक्ट लेते हैं तो क्वांटम मैकेनिक्स में एक वेव फंक्शन का आपका कैट वेक्टर होता है और दूसरे का ब्रा वेक्टर होता है। Yes sir. तो यहाँ पे जब आप इनर प्रोडक्ट लेते हैं तो एक वेक्टर का कॉन्ट्रावेरिएंट फॉर्म होता है और दूसरे का कोवेरिएंट फॉर्म होता है। दैट इज हाउ एन इनर प्रोडक्ट इज डिफाइंड। Okay sir. Good. अंडरस्टैंडिंग। तो जैसे क्वांटम मैकेनिक्स में आपका एक कैट वेक्टर होता है, दूसरा ब्रा वेक्टर होता है, दो कैट के बीच को तो इनर प्रोडक्ट नहीं डिफाइन होता ना। दो कैट के बीच इनर प्रोडक्ट डिफाइन होता है क्या?
नो सर। No sir, no sir. नहीं होता ना, दे बिलोंग टू डुअल हिल्बर्ट स्पेस। तो उसी तरह से जब हम 4 वेक्टर्स में इनर प्रोडक्ट को डिफाइन करते हैं तो वहाँ पे एक जो वेक्टर होगा वो होगा आपका कॉन्ट्रावेरिएंट फॉर्म में, दूसरा जो वेक्टर होगा वो होगा आपका कोवेरिएंट फॉर्म में। फिर कंपोनेंट्स को हम सारे कॉन्ट्रावेरिएंट में लिखे या कोवेरिएंट में लिखे वो बात की बात है, doesn't matter because anyways the only thing is that we write it either all in contravariant form or in covariant form, but in general जो expression है वो आप इसको लिखेंगे in terms of one is the contravariant form, the other is the covariant form. This are you following? सर ये जो आपने लिखा है ए म्यू सबस्क्रिप्ट में है तो इसके कंपोनेंट में सबस्क्रिप्ट आएगा सुपरस्क्रिप्ट आएगा? हाँ, तो ये कंपोनेंट में सब्सक्रिप्ट ही तो है ना। ये देखो ये कंपोनेंट में क्या है, ये ए नॉट बी नॉट प्लस ए वन बी वन प्लस ए टू बी टू प्लस ए थ्री बी थ्री। अब मैंने क्या बताया, मैंने ये बताया कि आपका ये दोनों बराबर है, ये और ये बराबर है, ए थ्री बराबर है तो ये और ये बराबर है, और ए वन ए टू ए बराबर है तो ये बराबर है। द ओनली थिंग इज ए नॉट कोवेरिएंट से ए नॉट कॉन्ट्रावेरिएंट में जाएंगे तो माइनस साइन आ जाएगा, दैट्स द ओनली थिंग। ओके सर। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, आई कैन राइट इट इन कॉन्ट्रावेरिएंट कोवेरिएंट फॉर्म ऑल्सो। अल्टीमेटली आई एम ओनली इंटरेस्टेड इन दिस इज अ स्केलर नंबर, इट्स अ स्केलर नंबर, आर यू अंडरस्टैंडिंग? ये एक समेशन है अल्टीमेटली, तो आपको एक ही नंबर मिलेगा। जिस तरह से आप डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, डॉट प्रोडक्ट में क्या मिलता है, एक नंबर मिलता है ना, एक स्केलर नंबर मिलता है आपको ये सब करने के बाद। उसी तरह से यहाँ पे भी आपको स्केलर नंबर मिलेगा, ठीक है। आप इसको कोवेरिएंट फॉर्म में लिखे कॉन्ट्रावेरिएंट फॉर्म में लिखे, कोई फर्क नहीं है, क्योंकि बाय डेफिनेशन दे आर इक्वल फॉर स्पैटियल कंपोनेंट्स, दे आर ऑपोजिट इन साइन फॉर टेम्पोरल कंपोनेंट्स। क्लियर है? Yes sir. Now Yes, sir. this convention is also known as the Einstein's summation convention because this involves a summation. Okay, this involves a summation of mu going from 0 to 3. Okay, so usually जब भी हम डील करेंगे स्केलर प्रोडक्ट के साथ, we will not write the summation because it becomes too cumbersome to write these expressions all the time. It is understood that this is also written as, this is quite simply written as, मतलब inner product is quite simply written as A mu B mu without the summation. Okay, without the summation. The summation is implicit. The summation is understood. So this is known as Einstein's summation convention. Einstein summation convention that जब भी आप किसी भी 4 वेक्टर्स का इनर प्रोडक्ट लिखना चाहते हैं तो दिस इज़ हाउ यू राइट इट। सो फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई वेक्टर का लेट्स सपोज मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना चाहता हूँ तो एक वेक्टर इनर प्रोडक्ट में इसको ए म्यू ऐसे लिखूँगा। लेट्स सपोज मेरे पास कोई वेक्टर है वेलोसिटी u इज़ अ वेलोसिटी, तो u इसका इनर प्रोडक्ट विद इटसेल्फ u म्यू। कोई मेरे पास एक वेक्टर है फोर्स का इनर प्रोडक्ट f म्यू m। तो इट इज़ द वे आई एम ट्राइंग टू शो यू दैट दिस इज़ द वे इट्स रिटर्न। कोई मेरे पास वेक्टर है मोमेंटम, तो p म्यू ऐसे लिखते हैं, ठीक है। जिस तरह से आप 3 वेक्टर्स में इस तरह से लिखते हैं, ऊपर एक एरो बना देते हैं, इस तरह से 3 वेक्टर का इनर प्रोडक्ट आप ऐसे लिखते हैं, 4 वेक्टर्स का इनर प्रोडक्ट आप इस तरह से लिखेंगे। एंड देन यू विल, इट इज़ अंडरस्टूड कि द मोमेंट आई राइट दिस, इसका मतलब ये है दैट पी नॉट प्लस P1 प्लस P2 प्लस P3 is this means minus P0 square plus P1 square plus P2 square plus P3 square. Is this understood? This is the x component, this is the y component, the z component, the time component. Clear है?
Yes, sir. कोई डाउट है यहाँ पे बेटा? कोई डाउट है? No, sir. ऑलराइट, तो एक एक करके हम अलग अलग क्वांटिटीज़ को डिफाइन करते हैं. तो लेट मी फर्स्ट डिफाइन व्हाट इज़ द डिस्प्लेसमेंट फॉर वेक्टर एंड देन फिर हम वेलोसिटी फॉर वेक्टर डिफाइन करेंगे धीरे धीरे करके. ठीक है, थोड़ा सा नया है, अदरवाइज इसमें अलग से कुछ नहीं है, देयर इज नथिंग टू मच अबाउट इट. सो लेट मी डिफाइन okay, so let me define what is displacement for vector. डिस्प्लेसमेंट 3 वेक्टर तो आपको मालूम है ना, 3 वेक्टर्स में डिस्प्लेसमेंट कैसे डिफाइन करते हैं आपको मालूम है, यू नो दैट राइट. डेल्टा आर इज इक्वल टू डेल्टा एक्स आई कैप प्लस डेल्टा वाई जे कैप प्लस डेल्टा जेड के कैप. यस और नो? Yes, sir. ओके, नाउ हम 4 वेक्टर्स को डिफाइन करते हैं, सो प्लीज लिसन केयरफुली. सो लेट्स सपोज दैट we were interested in finding out the vector between two physical events occurring at 2 different points. Suppose 2 events occur at, let's suppose, point A and point B. ठीक है, डेल्टा आर क्या होता है? डेल्टा आर इज नथिंग बट बेसिकली R2 minus R1, something like that. So this is basically equal to x2 minus x1 I cap plus y2 minus y1 j cap plus z2 minus z1 k cap. ठीक है, तो यहाँ पे let's suppose point A के जो coordinates है they are, point A के जो coordinates है let's suppose x a not time component, xa1 x component, xa2 y component, xa3 z component. उसी तरह से पॉइंट B में आपका है xb नॉट टाइम component, xb1 x component, xb2 y component and xb3 z component. ठीक है, तो इनके बीच का अगर हम जैसे डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे, नॉट द स्पैशियल डिस्टेंस बट द डिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ द इन दी 4 डायमेंशनल स्पेस टाइम, देन इसको हम अगर डिफरेंस लिखे तो difference can be written as del x mu is simply equal to, let's suppose, x a mu minus x b mu. Okay, where x a mu is nothing but, where x a mu is simply this and xb mu is simply this. Okay, xa mu is the 4 vector associated with the point A and xb mu is the 4 vector associated with point B. In that case we can define the difference between these components as del x. So del x is nothing but xa mu minus xb mu. So this is nothing but, quite simply put, xa naught minus xb naught comma xa1 minus xb1 comma xa2 minus xb2 comma and xa3 minus xb3 comma. यहाँ तक ठीक है? Yes, sir. Okay, now I want to show you an interesting point regarding the scalar product that I have defined in this manner and the space-time interval that we talked about in the previous lecture. So if I want to define the scalar product of the displacement vector, the scalar product is nothing but del x mu del x mu. This is the scalar product of the displacement vector. So the scalar product can simply be written as, this is simply equal to what? So इसको हम लिख सकते हैं as del x naught फिर del x1 del x2 and del x3.
Okay, we can write it in a very proper fashion. So this can be written as minus del x naught plus del x1 plus del x2 plus del x3 So this is what? This is nothing but xa naught minus xb naught square plus xa1 minus xb1 square plus xa2 minus xb2 square plus xa3 minus xb3 square. Okay, so what is this quantity? ये क्वांटिटी क्या है? xa naught minus xb naught. फिजिकली क्वांटिटी क्या है? सर डेल एक्स नॉट. हाँ वो तो दिख रहा है, बट फिजिकली क्या है ये? सर टाइम डिफरेंस बिटवीन टू इवेंट्स. डिस्टेंस बिटवीन XA एंड XB. डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड एक्स बी. हाँ, लेकिन फिजिकली क्या समझते हो इसको? टाइम फिजिकली क्या? डिफरेंस बिटवीन टू इवेंट्स. मल्टीप्लाइड बाय c. या मल्टीप्लाइड बाय c. So this is minus c into the time difference between two events a and b. Yes or no? x a naught आपका है c t a and x b naught आपका है c t b. This is how I have defined it, everything. This is the c multiplied by the time period difference between two events a and b. Yes or no? Yes sir. What is the second quantity? What is the second quantity? अरे यहाँ पे मैंने सब डिफाइन किया तो है ये. What is del x? क्या है? Second quantity क्या है? Second quantity is the distance between both the two events along the x-axis. Del x है ये, और ये del y है, और ये del z है. Is this clear or not? Please don't forget कि हम convention use कर रहे हैं, अलग अलग symbols use कर रहे हैं, but don't forget the meaning behind it. This represents the spatial distance along the x-axis between both the events. This is a spatial distance along the y-axis between both the events. This is a spatial distance along the z-axis between both the events. Yes or no? Yes sir. So this is ultimately nothing but minus c square del t square plus d square लिख देते हैं, del d square, where del d is nothing but the spatial distance between x, y and z. ये क्वांटिटी क्या है? ये क्वांटिटी स्पेस में जो दो इवेंट्स के बीच का डिस्टेंस है, जिसको हम स्पैशियल डिस्टेंस कह सकते हैं. और ये क्वांटिटी क्या है? टेम्पोरल डिस्टेंस है. टाइम में कितना फर्क है. यस और नो? Yes, sir. एंड व्हाट इज दिस क्वांटिटी एज अ होल? पूरा क्या है ये? व्हाट इज दिस? Displacement. Space time interval. Space time interval that we discussed in the previous lecture. We discussed the space time interval in the previous lecture. If you remember correctly, मैंने दिखाया था लास्ट लेक्चर में कि एक ऐसा क्वांटिटी है which under Lorentz transformation remains invariant. Under Lorentz transformation there is a quantity that remains invariant. This is that quantity. And ये invariant क्यों है? ये invariant इसलिए है because it is the scalar product of the displacement vector, and scalar products or inner products are always invariant under Lorentz transformation. Are you understanding? जो भी स्केलर प्रोडक्ट होता है किसी भी क्वांटिटी का, वो हमेशा ही इन्वेरिएंट रहता है अंडर लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन. दैट्स व्हाई इट वाज इन्वेरिएंट इन द प्रीवियस लेक्चर व्हिच आई प्रूव्ड फ्रॉम डिफरेंट मेथड्स. So this is the scalar product of a displacement vector
which is nothing but the space-time interval. Are you following? Are you following, beta? Yes. Yes, sir. सर Yes. सर जहाँ पे Yes. स्पिरिचुअल डिस्टेंस लिखा है वहाँ पे डेल्टा डी स्क्वायर होना चाहिए। हाँ, डेल्टा डी स्क्वायर, सॉरी, डेल्टा डी स्क्वायर। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये है कि देयर इज समथिंग कॉल्ड स्पेस टाइम इंटरवल, जो मैंने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि जब आप लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशंस करते हैं तो एक ऐसा क्वांटिटी है जो इन्वेरिएंट रहता है। एक नहीं, बहुत सारे क्वांटिटीज़ है, लेकिन वो एक पर्टिकुलर क्वांटिटी जो इन्वेरिएंट रहता है, और वो कौन सा क्वांटिटी है? वो है ये क्वांटिटी। ये क्वांटिटी इन्वेरिएंट रहता है अंडर लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन। फिर आज मैं आपको ये बता रहा हूँ कि कोई भी 4 वेक्टर हो, उसका इनर प्रोडक्ट हमेशा इन्वेरिएंट रहेगा। 4 वेक्टर का कॉम्पोनेंट इन्वेरिएंट नहीं होता अंडर लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन, पर इनर प्रोडक्ट हमेशा इन्वेरिएंट रहता है। जिस तरह से आप अगर एक रोटेशन करते हैं तो वेक्टर की जो कॉम्पोनेंट्स है दे में अंडरगो चेंज, बट द इनर प्रोडक्ट विल नेवर अंडरगो चेंज। द स्केलर प्रोडक्ट विल ऑलवेज बी इन्वेरिएंट। उसी तरह से 4 वेक्टर का जो स्केलर प्रोडक्ट है वो भी इन्वेरिएंट होता है। तो मैंने डिफाइन किया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, एंड द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का जो इनर प्रोडक्ट इज इन्वेरिएंट, एंड इट एज इट टर्न्स आउट इज द स्पेस टाइम इंटरवल। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक कोई डाउट है तो आप बोल सकते हो मेरे को। यहाँ तक क्लियर है बेटा? यस। ठीक है, तो बिफोर आई कंटिन्यू, ज़्यादा टाइम हमारे पास है नहीं, थोड़ा सा मैं एक डिस्टिंक्शन बना रहा था, इसके रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर आएंगे। ठीक है, देयर विल बी क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस, questions related to classification of various events related to space-time interval. How? So, for any two physical events happening in space-time, you can always define the space-time interval, which is the displacement vector. जैसे कि आपका अगर कोई भी यहाँ पे अगर कोई भी आपका कोई कोऑर्डिनेट फ्रेम ऑफ रेफरेंस में 2 इवेंट होता है, एक A और दूसरा B, उनके बीच में आप डेल आर डिफाइन कर सकते हो, है ना। उसी तरह से आप 4 डायमेंशनल स्पेस टाइम में डेल एक्स ये डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, सो केसेस, सो डेल एक्स म्यू इज इक्वल टू आई, ये जो है इज इक्वल टू डेल्टा डी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डेल्टा टी स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे केसेस पॉसिबल क्या है? द पॉसिबल केसेस आर, केस नंबर 1, it is possible that I is greater than 0, that is delta d square is greater than c square delta t square. Physical events can be classified according to whether I is greater than 0, equal to 0, or less than 0. In those situations where I, the space time interval, is greater than 0, इसका मतलब क्या है कि जो space interval है, the space interval is greater than the time interval. Are you following? Sir, repeat it again. मैंने जो एक एक स्पेस टाइम डायग्राम बनाया था, आपको याद होगा। 4D स्पेस टाइम डायग्राम तो बनाना मुश्किल होता है, लेकिन 2D स्पेस टाइम डायग्राम बना सकते हैं। लेट्स सपोज ये x हो गया और ये आपका एक CT हो गया। ठीक है, अगर एक फिजिकल इवेंट होता है यहाँ पे और एक फिजिकल इवेंट होता है यहाँ पे, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है उसकी 2 कंपोनेंट्स होती हैं। एक तो आ होगा डेल एक्स, ये हो गया डेल एक्स। दूसरा आपका हो गया डेल टी, सी डेल टी। तो अगर हम इनके बीच में कंपैरिजन करेंगे इनके बीच में कंपैरिजन करेंगे, डेल एक्स और सी डेल टी के बीच में कंपैरिजन करेंगे, तो कभी सी डेल टी बड़ा हो सकता है डेल एक्स से, कभी डेल एक्स बड़ा हो सकता है सी डेल टी से। आर यू अंडरस्टैंडिंग? इन लेट्स सपोज ये अगर 2 फिजिकल इवेंट है, ये फिजिकल इवेंट है, तो यहाँ पे तो डेल एक्स इज ग्रेटर देन सी डेल टी। अगर ये फिजिकल इवेंट है तो यहाँ पे सी डेल टी इज ग्रेटर देन डेल एक्स। आर यू अंडरस्टैंडिंग? ना वो हम क्यों कर रहे हैं, इसका एक सिग्निफिकेंस है, मैं वो उसमें आऊँगा। देयर इज अ सिग्निफिकेंस टू व्हाई वी आर डिस्टिंग्विशिंग
जहाँ पे स्पेस इंटरवल इज ग्रेटर देन द टेम्पोरल इंटरवल। ये क्या है? स्पेस इंटरवल है ना, स्पैशियल इंटरवल, और ये क्या है? टेम्पोरल इंटरवल है ना, टाइम इंटरवल। तो ये बेसिकली एक ऐसा सिचुएशन है जहाँ पे द स्पैशियल इंटरवल इज ग्रेटर देन टेम्पोरल इंटरवल, एंड द फिजिकल इवेंट्स दैट आर कनेक्टेड बाय दिस, दोज आर नोन एज these kind of intervals are basically known as space-like intervals. They are known as space-like intervals. What are space-like intervals? Space-like intervals इसको क्यों बोलते हैं? सबसे पहली बात, those physical events for which the spatial interval is always greater than the temporal interval are known as space-time intervals, and they are called space-time intervals because it is always possible to find an inertial observer. मतलब दो इवेंट्स को स्टडी करने के लिए इनफाइनाइट ऑब्जर्वर्स हो सकते हैं. आउट ऑफ द इनफाइनाइट ऑब्जर्वर्स इट इज ऑलवेज पॉसिबल टू फाइंड एन इनर्शियल ऑब्जर्वर such that for that observer del t is equal to 0. मतलब अगर दो इवेंट्स हो रहे हैं और उनके बीच का टाइम पीरियड कुछ है तो इट इज़ पॉसिबल टू फाइंड एन इनर्शियल ऑब्जर्वर सच दैट उनके बीच का टाइम पीरियड 0 है कि नहीं? हमने रिलेटिविटी ऑफ साइमल्टेनिटी में देखा था. देयर कैन बी इनफाइनाइट ऑब्जर्वर्स आउट देयर इन स्पेस टू स्टडी द सेम टू फिजिकल इवेंट्स, और उन दोनों फिजिकल इवेंट्स के बीच का जो टाइम पीरियड है वो किसी के लिए पॉजिटिव हो सकता है, किसी के लिए 0 हो सकता है. यस और नो? यस. तो अगर हम कोई ऐसा इनर्शियल ऑब्जर्वर फाइंड आउट करते हैं जिसके लिए दोनों इवेंट्स ए और बी के बीच का टाइम पीरियड 0 है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि डेल डी स्क्वायर इज ग्रेटर देन सी स्क्वायर डेल टी स्क्वायर, दैट इज डेल डी इज पॉजिटिव. मतलब टाइम हो गया तुम्हारा 0 तो ये पॉजिटिव हो गया ना, पॉजिटिव क्वांटिटी हो गया. 0 से बड़ा तो पॉजिटिव होगा ना. यस सर. इसका मतलब क्या है? दैट द इवेंट्स, इसका मतलब ये है दैट द इवेंट्स आर सेपरेटेड इन स्पेस but not in time, therefore they are known as space-like events. The events are separated in space but not in time. मतलब they happen at the exact same time but they happen at different locations. They are separated by space but not in time. They are known as space-like intervals. Is it clear? हाँ, 2 बजे आपका कोई दूसरा क्लास है या मेरा ही क्लास है? मेरा ही ट्यूटोरियल है आज. यस सर. आपने मेरा ही है तो मैं Yes, sir. कंटिन्यू कर सकता हूँ ना? Yes. ठीक है. यस इस चीज़ को आपने फॉलो, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन ज़रूर आएगा. स्पेस लाइक इंटरवल क्या होता है, टाइम लाइक इंटरवल क्या होता है, लाइट लाइक इंटरवल क्या होता है, इसके ऊपर क्वेश्चन ज़रूर आएगा, इसलिए इस चीज़ को समझ लो. स्पेस लाइक इंटरवल वो होता है जहाँ पे दो इवेंट्स, हम हमेशा, ये क्या है, इंटरवल है ना, ये दो इवेंट्स ए और बी के बीच का इंटरवल है ना. ए एक इवेंट है, दूसरा बी एक इवेंट है, दोनों के बीच का इंटरवल है टाइम इंटरवल एज वेल एज स्पेस इंटरवल. तो जहाँ पे स्पेस इंटरवल इज ग्रेटर देन द टाइम इंटरवल उनको स्पेस लाइक इंटरवल बोला जाता है, बिकॉज इट इज़ ऑलवेज पॉसिबल टू फाइंड एन इनर्शियल ऑब्जर्वर such that the events are separated in space but not in time. Is this clear? Yes, sir. Yes, sir. All right. उसी तरह से another classification is possible जहाँ पे I is less than 0. यहाँ पे क्या था? I is greater than 0, I is less than 0. I is less than 0 का मतलब क्या है? I is less than 0 का मतलब है that delta d c square delta t square is greater than delta d square.
यस, मतलब जो आपका टेम्पोरल इंटरवल है इट इज ग्रेटर देन द स्पैशियल इंटरवल. टेम्पोरल इंटरवल इज ग्रेटर देन स्पैशियल इंटरवल. इसका मतलब क्या है? इट इज ऑलवेज पॉसिबल टू फाइंड एन ऑब्जर्वर. इट इज ऑलवेज possible to find an inertial observer such that for that observer delta D is equal to 0. Yes or no? Yes, sir. इट इज़ नेवर पॉसिबल टू फाइंड एन ऑब्जर्वर where डेल्टा टी इज इक्वल टू 0. क्योंकि डेल्टा टी अगर 0 हो जाएगा तो इसका मतलब डेल्टा डी स्क्वायर नेगेटिव होना पड़ेगा. डेल्टा डी स्क्वायर नेगेटिव हो ही नहीं सकता बिकॉज इट्स ए स्क्वायर क्वांटिटी. मैंने यहाँ पे क्या बताया? यहाँ पे मैंने बताया इट्स पॉसिबल टू फाइंड एन ऑब्जर्वर सच दैट डेल्टा टी इज इक्वल टू 0. आप मुझसे ये पूछ सकते थे सर डेल्टा डी क्यों नहीं 0 हो सकता? डेल्टा डी 0 ही नहीं हो सकता. डेल्टा डी अगर 0 हो गया तो इसको तो नेगेटिव होना पड़ेगा ना, विच इज़ नॉट पॉसिबल. इट्स ए स्क्वायर. सी डेल टी का स्क्वायर है. स्क्वायर क्वांटिटी नेगेटिव कैसे हो सकता है? अनटिल अनलेस द टाइम इंटरवल इज इमेजिनरी, व्हिच इट इज नॉट. ठीक है. वैसे भी सर अगर डेल्टा डी 0 हो जाएगा, हेलो क्या? हाँ बताओ. वैसे अगर सर डेल्टा डी 0 हो जाएगा तो सेम इवेंट ही हो जाएंगे ना, एक ही पॉइंट पे होंगे. उसी पे तो मैं आ रहा हूँ. अगर डेल्टा डी 0 हो गया तो इसका मतलब क्या है? दैट सी स्क्वायर डेल्टा टी स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0. मतलब डेल्टा टी इज पॉजिटिव. डेल्टा टी इज पॉजिटिव. इट्स नॉन जीरो. यस और नो? सेम जगह पे हो रहा है बट अलग अलग टाइम पे हो रहा है. एक इवेंट 1 सेकेंड पे होता है तो दूसरा इवेंट 10 सेकेंड बाद होता है, लेकिन सेम जगह पे हो रहा है. आर यू फॉलोइंग? दोनों सेम इवेंट नहीं है. Yes, sir. So the events are separated in time. The events are separated in time but not in space. Spatial distance इनका 0 है. They are separated in time. इस तरह के इवेंट को बोलते हैं टाइम लाइक इवेंट्स. टाइम लाइक इवेंट्स. TIME. आर यू फॉलोइंग? टाइम लाइक इवेंट्स वो है जिनके लिए इट इज पॉसिबल टू फाइंड एन ऑब्जर्वर सच दैट फॉर दैट ऑब्जर्वर द इवेंट्स आर सेपरेटेड इन टाइम बट नॉट इन स्पेस. मतलब स्पैशियल डिस्टेंस 0 हो सकता है. और स्पेस लाइक इवेंट्स वो है जिनके लिए इट इज पॉसिबल टू फाइंड एन इनर्शियल ऑब्जर्वर सच दैट द इवेंट्स आर सेपरेटेड इन स्पेस बट नॉट इन टाइम. मतलब टाइम इंटरवल 0 हो सकता है बट स्पैशियल डिस्टेंस कभी 0 नहीं होगा. स्पेस लाइक इंटरवल वो है जिनके लिए स्पैशियल इंटरवल कभी 0 नहीं होगा. और टाइम लाइक इंटरवल्स वो है जिनके लिए टाइम इंटरवल कभी 0 नहीं होगा. आर यू अंडरस्टैंडिंग? Yes, sir. किसी को नहीं समझ आ रहा बेटा बता दो. कि मुझे पता है थोड़ा सा नया है बट इट विल स्टार्ट मेकिंग सेंस वंस यू थिंक अबाउट इट. आगे बढ़ूँ फिर नेक्स्ट में. Yes, sir. नेक्स्ट है लाइट लाइक इंटरवल्स. लाइट लाइक इंटरवल्स वो होते हैं जहाँ पे i इज इक्वल टू 0. i इज इक्वल टू 0. i इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या है? सी स्क्वायर डेल्टा टी स्क्वायर इज इक्वल टू डेल्टा डी स्क्वायर. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि सी स्क्वायर इज इक्वल टू डेल्टा डी स्क्वायर अपॉन डेल्टा टी स्क्वायर. तो वो तो वेलोसिटी ऑफ लाइट से कनेक्ट हो गया. मतलब यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि जो डेल्टा एक्स है तो डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू अगर सी होता है तो दैट इज अ लाइट लाइक इंटरवल. और वो कब होगा? जब ये एंगल कितना होगा? लेट्स सपोज अगर हम यूनिट्स
ct के टर्म्स पे लेते हैं तो ये एंगल का स्लोप 1 होना चाहिए, 45 डिग्रीज होना चाहिए। तो जो इवेंट्स आर कनेक्टेड बाय द स्पीड ऑफ लाइट दे आर नोन एज लाइट लाइक इंटरवल्स। So these two events are separated by the speed of light. मतलब स्पेस इंटरवल इतना है और टाइम इंटरवल उतना है कि उस स्पेस को उतने टाइम में सिर्फ स्पीड ऑफ लाइट में ही तुम कवर कर सकते हो। अंडरस्टूड? So these are called light like events when two events are connected by a signal traveling at the speed of light. यहाँ पे हम हमेशा दो इवेंट्स के बीच के इंटरवल की बात कर रहे हैं, टाइम इंटरवल नहीं, स्पैटियल इंटरवल नहीं, दोनों ही। ठीक है, यूजुअली हम नॉर्मल वेक्टर्स में डिस्टेंस इंटरवल की बात करते हैं, डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। यहाँ पे हम टाइम इंटरवल और डिस्टेंस इंटरवल दोनों को कनेक्ट कर रहे हैं और हम कह रहे हैं कि दो डिस्टेंस इंटरवल होगा डायग्रामेटिकली सिर्फ मैं एक्स या वाई को दिखा सकता हूँ, ठीक है, तीनों को नहीं दिखा सकता, बट दिस इज ट्रू फॉर इन जनरल। तो यहाँ पे 3 केसेस पॉसिबल है। स्पेस लाइक इंटरवल्स वो होते हैं जहाँ पे द स्पैटियल डिस्टेंस इज नेवर इक्वल टू 0, ओके, एंड टाइम लाइक इंटरवल्स वो होता है जहाँ पे द टेम्पोरल डिस्टेंस इज नेवर इक्वल टू 0, एंड लाइट लाइक इंटरवल्स वो होते हैं जहाँ पे स्पैटियल डिस्टेंस और टेम्पोरल डिस्टेंस वो होता है दैट आर कनेक्टेड बाय द स्पीड ऑफ लाइट। इज दिस क्लियर? Yes, sir. ना इस चीज़ को थोड़ा सा मैं और इलेबोरेट कर सकता हूँ, लाइक स्पेस लाइक इंटरवल क्या है, टाइम लाइक इंटरवल क्या है, लाइट लाइक इंटरवल क्या है। मैंने मैथमेटिकली यहाँ दिखाया है, बट इसको मैं थोड़ा डायग्रामेटिकली इलेबोरेट कर सकता हूँ, जो मैं करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो लेट अस लुक एट 4 डायमेंशनल ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन। सो 4 डायमेंशनल स्पेस टाइम, 4D स्पेस टाइम के जगह पे हम 2D स्पेस टाइम में जाते हैं। उनके लिए भी ट्रू है। 2D स्पेस टाइम में मतलब आप यहाँ पे जो डेल डी है वो उसमें सिर्फ x क्वांटिटी होगा, लेट्स सपोज y क्वांटिटी नहीं होगा। ओके, तो इफ़ आई गो इनटू दिस थिंग 2D स्पेस टाइम, तो आई कैन ड्रॉ the time interval सिर्फ डिस्टेंस को मैं x मान के चलता हूँ, इट्स अ 1 डायमेंशनल मोशन और टाइम। ठीक है, वैसे मैं एक्स वाई के बीच में भी मान सकता हूँ, एक्स वाई और टाइम को भी मान सकता हूँ। ठीक है, उसमें भी पॉसिबल है, लेकिन उससे ज़्यादा मैं ज्योमेट्रिकली नहीं दिखा सकता, एक्स वाई जेड को नहीं दिखा सकता। ठीक है, लेकिन अगर हम एक्स और सी टी की बात करेंगे, तो मैंने क्या बताया था, एक बार आपको याद होगा कि अगर एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होगा तो उसके लिए ट्रैजेक्टरी क्या होगा, वर्ल्ड लाइन क्या होगी इस के ग्राफ में, ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। इफ वी आर कंसिडरिंग 1 डायमेंशनल मोशन, पैरेलल टू सीटी आपका इस तरह का ग्राफ होगा। ठीक है, अगर एक ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन पे है तो उसका ग्राफ कैसे होगा? स्ट्रेट लाइन स्लोप ग्रेटर देन 1, और एक अगर ऑब्जेक्ट एक्सेलरेटिंग है तो कर्व आएगा। कर्व आएगा।
ठीक है, वेरी गुड। तो यहाँ पे क्या है, कुछ लिमिटेशंस हैं, मैंने जो उस टाइम पे डिस्कस नहीं किया। तो सबसे पहला लिमिटेशन तो सेकंड पोस्टुलेट ऑफ आइंस्टाइन। आइंस्टाइन के सेकंड पोस्टुलेट क्या कहती है, दैट द स्पीड ऑफ लाइट इज़ अ कांस्टेंट। और आपने अगर STR जब फर्स्ट ईयर में पढ़ा था तो वहाँ पे देखा था कि जैसे जैसे यू अप्रोच द स्पीड ऑफ लाइट, जो मैसिव ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनका मास जो है इट अप्रोचेज इन्फिनिटी। सो देयरफॉर इट इज़ नेवर पॉसिबल टू एक्चुअली रीच द स्पीड ऑफ लाइट फॉर एटलीस्ट फॉर मैसिव पार्टिकल्स। जो नॉर्मल डे टू डे पार्टिकल्स होते हैं दैट हैव नॉन जीरो मास, it is never possible for them to reach the speed of light. So the speed of light becomes a limitation. So nothing can travel faster than the speed of light. Yes. Now of course इसके ऊपर और discussion है. People talk about imaginary objects traveling back in time. We are not going to discuss that. So as far as we know, nothing can travel faster than speed of light. Yes. तो इफ नथिंग कैन ट्रेवल फास्टर देन स्पीड ऑफ लाइट, देयरफॉर जो भी फिजिकल इवेंट्स होते हैं दे आर रेस्ट्रिक्टेड टू अ सर्टेन जोन। दिस इज अ 45 डिग्री एंगल, ये 45 डिग्रीज है। 45 डिग्रीज क्यों है, इसका स्लोप 1 है। मतलब if nothing can travel faster than the speed of light, then objects will be restricted within this particular wedge. इसका मतलब जो भी फिजिकल इवेंट्स होते हैं, whatever physical events happen in our day-to-day life, if you draw their trajectories will always be restricted to this area. Are you understanding? बाहर का जो एरिया है वहाँ पे ट्रैजेक्टरी कभी जाएगा ही नहीं। बाहर के एरिया में ट्रैजेक्टरी जाने का मतलब क्या है, इसका मतलब है ऑब्जेक्ट इज ट्रैवलिंग फास्टर देन स्पीड ऑफ लाइट। इट्स नेवर गोइंग टू हैपन। सो ऑब्जेक्ट्स आर ऑलवेज रेस्ट्रिक्टेड टू दिस जोन। Objects are always restricted, objects and their trajectories basically are always restricted to this region. If I draw the trajectory of any kind of a particle, कोई भी पार्टिकल आता है आपके पास, ठीक है, उसका एक ट्रैजेक्टरी होता है, तो इसका जो ट्रैजेक्टरी होता है हमेशा जो है इसी रीजन में रेस्ट्रिक्टेड रहेगा, कभी इस रीजन के बाहर जाने की पॉसिबिलिटी नहीं है। इट इज़ फॉरबिडन बाय STR। तो एट एवरी पॉइंट इन स्पेस यू कैन स्पेसिफाई द रीजन where the trajectory can go. तो this line, ये जो line है, this line is basically related to the speed of light. So this is the velocity of light, this line, this is 45 degree line, and this region is known as a light wedge or a light cone. अगर आप इसको 2 dimensional space और 1 dimensional time में दिखाएंगे तो ये एक cone की तरह बन जाता है। तो this cone basically signifies the region in which the trajectory of the particle is possible. इसके बाहर जो है the trajectory of the particle is not possible. In fact, जब particle यहाँ पे पहुँच जाता है, यहाँ पे भी we can draw a particular region here in which the particle's trajectory is limited to. So therefore, what relativity does is, out of all possible points in the space-time, जो space-time में जितनी भी possible points है, it makes some of the points forbidden. Some of the points become forbidden and some of the points remain allowed. तो blue जो points है, these are allowed points in which the trajectory can go, and beyond blue the other points are all forbidden. That means it is not possible for the particle to travel to these points. इन points में जाना possible है ही नहीं। It is not possible for the trajectory to venture into these regions in space-time. Are you understanding? Yes, Are you sir. following what I'm saying?
Yes, sir. तो ये जो रीजन है, ये रीजन इज फॉरबिडन बाय रिलेटिविटी, और ये जो आपका रीजन है इट इज अलाउड इन द पास्ट, इन द फ्यूचर. So this is a region that is forbidden. This is a region that is allowed. ठीक है, ये आपका हो गया. This at this particular point, this is your present. ये present है ना, जब टाइम t इज इक्वल टू 0, ये present है. ये आपका हो गया फ्यूचर, फ्यूचर ट्रैजेक्टरी क्या हो सकता है, और ये आपका हो गया पास्ट, पास्ट ट्रैजेक्टरी क्या हो गया. आप प्रेजेंट में देख सकते हो, प्रेजेंट में एक ही पॉइंट पॉसिबल है. प्रेजेंट में जहाँ पे आप हैं, जिस टाइम पे आप हैं, द पॉइंट 0, दिस इज द पॉइंट. फ्यूचर में ऑल ऑफ दीज पॉइंट्स आर पॉसिबल, दीज आर नॉट अलाउड. पास्ट में भी यू कुड हैव कम फ्रॉम हियर ओनली. So in a way, the motion of the body is therefore restricted between the wedge-shaped region formed by two 45-degree angle this thing. So this region is accessible to you in the future, and the rest is not accessible to you. Are you following, beta? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Okay. अब coming to the space-like events and time-like events. ओके अगर स्पेस लाइक इवेंट्स और टाइम लाइक इवेंट्स की बात करते हैं, तो लाइट लाइक इवेंट्स कौन से होते हैं? लाइट लाइक इवेंट्स वो होते हैं जो लेट्स सपोज एक इवेंट आपका यहाँ पे होता है, ठीक है, एक इवेंट आपका यहाँ पे होता है, दूसरा इवेंट आपका यहाँ पे होता है. दे आर कनेक्टेड बाय द स्पीड ऑफ लाइट. यस, yes, if an event happens here and an event happens here, they are connected by the speed of light. These are known as light-like events. Yes or no? Yes, sir. मतलब क्या है, अगर मैं x कंपोनेंट फाइंड आउट करूंगा, टाइम कंपोनेंट फाइंड आउट करूंगा, तो डेल x अपॉन डेल t विल बी इक्वल टू c. दैट्स इट. दीज आर लाइट-लाइक इवेंट्स. अगर ये मेरा ग्राफ है एक तरीके से, दो इवेंट्स को मैं अगर डिनोट करूंगा इस ग्राफ में, तो दे आर कनेक्टेड बाय दिस एक्सप्रेशन, सो दे आर नोन एज लाइट-लाइक इवेंट्स. क्लियर है? Yes, sir. और टाइम लाइक इवेंट्स क्या होते हैं? टाइम लाइक इवेंट्स आर दोज इवेंट्स फॉर विच इट इज पॉसिबल टू फाइंड टू इवेंट्स दैट आर सेपरेटेड इन टाइम बट नॉट इन स्पेस. ठीक है, तो अगर दो इवेंट्स ऐसे होंगे, यहाँ पे होंगे, यहाँ पे, या फिर इन जनरल मैं आपको बता देता हूँ, अगर एक इवेंट यहाँ पे होता है और एक इवेंट यहाँ पे होता है, तो दीज टू आर टाइम लाइक इवेंट्स. टाइम लाइक इवेंट्स आर अलाउड. स्पेस लाइक इवेंट्स कौन से होते हैं? स्पेस लाइक इवेंट्स आर वो होते हैं इन विच दे सेपरेटेड इन स्पेस बट नॉट इन टाइम, तो दे आर आउटसाइड द कोन. मतलब दे आर बियॉन्ड द स्पीड ऑफ लाइट. They are beyond the speed of light. Their slope is greater than this, less than this 1. Slope is less than 1. तो space like events वो होते हैं जहाँ पे the slope is less than 1. एक सेकेंड, one moment. सॉरी, मैंने उल्टा बता दिया आपको. स्पेस लाइक इवेंट्स आर दोज वेयर स्लोप इज ग्रेटर देन 1. सॉरी, डेल डी अपॉन सी डेल टी इज ग्रेटर देन 1, है ना. स्पेस लाइक इवेंट्स हैव स्लोप ग्रेटर देन 1 एंड टाइम लाइक इवेंट्स हैव स्लोप लेस देन 1. डेल डी अपॉन सी डेल टी इज लेस देन 1.
एंड लाइट लाइक इवेंट्स के लिए स्लोप इज इक्वल टू 1, del t अपॉन c del t इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे जो ये हो गया आपका, ये हो गया इक्वल टू 1 है ना, तो ये हो गया लाइट लाइक इवेंट। तो स्पेस लाइक इवेंट, आई एम सॉरी, स्पेस लाइक इवेंट्स के लिए स्लोप इज ग्रेटर देन 1। है ना, जो स्पेस लाइक इवेंट्स है वो है स्लोप ग्रेटर देन 1 एंड टाइम लाइक इवेंट्स आर स्लोप लेस देन 1। Yeah. Yes, I think that makes more sense. Is this clear? Yes, sir. Just one sec.